grade 9, chapter number 3, Newton laws of motion. My dear students, न्यूटन ने ये laws introduce कराए 17th century के करीब, और according to these laws I just explain verbally Newton first law and third law, and the formula of Newton second law is going to be derived. तो डेरिवेशन सिर्फ एक लॉ की है, बाकी दोनों लॉ जो है ना उसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं. आई जस्ट एक्सप्लेन दैम. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. देयर आर 3 लॉज. न्यूटन फर्स्ट लॉ, according to this law, anybody which is at rest will remain at rest. Anybody which is in motion will continue its state of motion. This means there are two parts of this law. First part, let's suppose any book or any body which is placed on the surface of table. So book will remain at rest until no external force act upon it. जब तक कोई बाहर से इस पे फोर्स नहीं लगेगी, ये बुक remains at rest रहेगी. Number 1. Number 2, when you can roll ball on a surface. यहाँ पे हम suppose कर लेते हैं there are two surfaces. One is rough surface, other one is smooth surface. Rough surface and second one is smooth surface. Friction is more than that of rough surface than that of smooth. So when we can roll down a ball on a rough surface, the ball will come earlier than that of smooth surface. Other than that, if you can let's suppose a ball is rolling, suppose, so ball will come to rest. Number of forces acting upon a ball. Number of forces. Number 1, attraction of earth. Attraction of earth. And number 2, resistance of air. If you can remove these forces, the ball will never ever to stop. So according to Newton law is there, but the forces are compelled to stop the ball. So these are two parts of this law. My dear students, ये first law था. First law में और कोई ऐसी बात है नहीं है. अच्छा, okay, one point is noted. This law can also be called as law of inertia. इसको एक और नाम देते हैं law of inertia. अक्सर पूछते हैं what is law of inertia? So Newton first law is also called law of inertia. अच्छा, inertia basically is a best example कि आपको मैं यूं समझाऊं कि अगर आप बस के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और अचानक ब्रेक्स अप्लाइड होती हैं, passengers are always falling forward, lower part comes to rest, upper part is in motion, तो passengers are always moving forward direction में गिरना, ये due to inertia का ही एक part है. Similarly, bus suddenly start, suddenly move, so passengers are moving backward. So these are two basic points about this law of inertia. So law of inertia statement is just like saying body at rest or move with uniform velocity. Achha, one point is noted. So these laws are only be applicable for uniformly accelerated bodies. यूनिफॉर्मली जो बॉडी एक्सेलेरेट करती है, ये लॉ उनके लिए वैलिड है. ओके, आई अभी कम टू द पॉइंट जो मैं जिसके लिए आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, वो है
स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या वो कहेगा प्रूव दैट। क्वेश्चन बेटा वो यूं पूछेगा, प्रूव दैट F is equal to ma force. This law plays a vital role in body which are under motion. जो भी बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, ऑलवेज फॉलो न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसलिए सेकंड लॉ का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा, ये उस दौर की बात है जब क्लासिकल फिजिक्स, आपको पता है फिजिक्स भी हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है, क्लासिकल और दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन एंड सो ऑन, ये बेसिक चीजें हैं। एप्पल गिरा, उसने क्या, ग्रेविटी है, बॉडी एट रेस्ट है, ये उस वक्त की बातें जब एज, एनिशिएंट एज की बात है, और ये क्लासिकल फिजिक्स है। आजकल मॉडर्न फिजिक्स है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, पार्टिकल फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सो ऑन। तो ये दो फिजिक्स है, ये ना कंफ्यूज होइएगा, फिजिक्स बिल्कुल ऐसी है, ये उस दौर की फिजिक्स है जब क्लासिकल मीन बहुत अर्ली एज की फिजिक्स थी। बहरहाल न्यूटन सेकंड लॉ को मैं डिफाइन करूंगा। व्हेन नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स इज अ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। One is applied force, other one is a net force. Applied force, when you can apply a force on a body, body may move or not. लेकिन when you can use the word net force, so by applying a force, the body must accelerate. इसलिए जो body net force हम बात करते हैं उसमें body, ये point to be noted, net force को word आपने याद रखना है, for which the body is going to accelerate. Okay. According to this law, when we can applying a net force on a body, the body will accelerate in the direction of नेट फोर्स। ये नहीं कि फोर्स हम इधर लगाएं, बॉडी इधर मूव करे, नो, रेजिस्ट नहीं कर रही, रेजिस्ट कर रही है, लेकिन वो मूवमेंट, उसकी मोशन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। वन पॉइंट इज क्लियर। दिस एक्सेलरेशन इज, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उस बॉडी में, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का नाम है, ये मैं सेकंड चैप्टर में डिटेल से बता चुका हूं, उसमें आप बेशक वो लेक्चर मेरा देखिएगा। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इसको माय डियर स्टूडेंट मैंने एक्सप्लेन करना है, जिसके लिए मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। द फर्स्ट पार्ट, मैं इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैंने बताया, मैंने सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप लिखने हैं। डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ की जब बात करते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ ही है। ओके जी, जरा देखिएगा। अभी फर्स्ट पार्ट इसका क्या है जी, आपने लिखना है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स। क्या लिखोगे? दिस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स बाय कीपिंग मास कांस्टेंट। मास को नहीं चेंज करना, कभी 1 kg बॉडी रख लें, कभी 2 kg, नो, बाय कीपिंग मास कांस्टेंट देन यू कैन से एक्सेलरेशन एंड नेट फोर्स ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर 2, दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अच्छा, मास ऑफ द बॉडी के लिए फोर्स कांस्टेंट होगी, मतलब आप फोर्स अगर 4 न्यूटन लगाइए तो सेकंड टाइम भी 4 न्यूटन। लाइटर बॉडी ज्यादा एक्सेलरेट करेगी, हैवी बॉडी कम, फोर्स कांस्टेंट होगी। तो ये देयर आर 2 पार्ट्स माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस लॉ के 2 पार्ट्स हैं। बाय कंबाइनिंग 1 and 2 टू गेट, क्या होगा जी? लेफ्ट साइड आपने देखा एक्सेलरेशन ही है, F इंटू 1/m, F इंटू 1/m, इसको मल्टीप्लाई कर लें, F इंटू 1F/m। एक यहां पे ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या है? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, देयर आर 2 प्रोपोर्शन, एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ द टर्म्स आर रिटन इन अ न्यूमरेटर फॉर्म, दोनों कोई डिनोमिनेटर नहीं है, ए प्रोपोर्शनल, ये साइन दोनों के सेम है। अगर दोनों ऊपर लिखी होंगी तो हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन वन इंक्रीज अदर इंक्रीज, वन डिक्रीज अदर आल्सो डिक्रीज, 2 क्वांटिटीज हैं। इनवर्सली में वन इंक्रीज अदर डिक्रीज, वन इंक्रीज अदर जो है ना वो डिक्रीज हो, दूसरी इंक्रीज हो जाए, तो ये इनवर्सली है। जब व्हेन यू कैन रिमूव दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी यूज कांस्टेंट, ये याद रख लीजिएगा, कांस्टेंट हम यूज करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव हो गया है, कांस्टेंट। न्यूटन ने यहां पे के कांस्टेंट यूज किया और साथ ही उसने क्या है, ये कांस्टेंट क्या है? यूनिट 1 के, पहले इसने कांस्टेंट यूज किया है, फिर उसने के को क्या कह दिया? 1 के बराबर। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो F इंटू 1F,
m इंटू ए एम ए। ये यहां से न्यूटन लॉ ड्राइव हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसको आप पहले इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद 2 स्टेप्स में इसको डिवाइड करेंगे कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स है नंबर 1, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी के। इन दोनों को आपने कंबाइन किया है, ठीक है, 1 और 2 को, तो आपके पास ये साइन प्रोपोर्शनलिटी का मैंने बताया। अच्छा, यहां पे अक्सर आता है डिफाइन न्यूटन। अच्छा, न्यूटन को जब हमने डिफाइन करना है, ये बड़ा जरूरी है, न्यूटन को जब आपने डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करना है? न्यूटन की हिस्ट्री नहीं लिखनी है हमने। फोर्स इज इक्वल टू एम ए है, 1 न्यूटन फोर्स कब होगी और एक्सेलरेट बॉडी कितनी होगी, यहां से मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। व्हेन 1 kg बॉडी एक्सेलरेट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। तो ये कभी कभी आता है व्हाट इज फोर्स डिफाइंड इट्स एसआई यूनिट, तो ये डेफिनेशन आपने वहां लिख देनी है, लेकिन आपने इस लॉ के साथ भी लिखनी है। दोबारा सुने कि 1 न्यूटन फोर्स कब होगी? व्हेन 1 kg बॉडी का मास कितना हो 1 kg और बॉडी एक्सेलरेट कितनी करे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन वी कैन से इट इज कॉल्ड 1 न्यूटन फोर्स। तो आप इसको इंग्लिश में आप इसको अपने वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं, when 1 kg body accelerates 1 meter per second square, force is 1 न्यूटन। तो ये सिंपल, कभी कभी ये डेफिनेशन आती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को आप एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। मैं उसी से आपको 2 एग्जांपल करके न्यूटन थर्ड लॉ करवाता हूं ताकि ये लेक्चर पूरा आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ताकि ये लेक्चर लॉज ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ये बात जहन में रख लें, एक्शन और रिएक्शन। एक्शन क्या है? लेट्स सपोज 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। ए बॉडी बी पे जो फोर्स एक्ट कर रही है विच इज एक्शन, और बी जो ए पे एक्ट कर रही है विच इज रिएक्शन। दीज 2 फोर्सेस, ये एक्शन है जी, ये रिएक्शन है। दीज 2 एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट। अच्छा, इसकी अभी एवरीडे लाइफ पे आ जाए। अच्छा, इसकी मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, ये बुक वाली एग्जांपल ही है। जब हम कहते हैं बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, बिल्कुल कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अभी वेट ऑफ द बुक लाइंग डाउनवर्ड, रिएक्शन ऑफ द टेबल लाइंग अपवर्ड, तो चूंकि बुक रेस्ट में है तो दीज आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये न्यूटन थर्ड लॉ बता रहा हूं मैं, इसी का पार्ट है बेसिकली ये एक्शन और रिएक्शन। बुक का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है टेबल के, और टेबल का रिएक्शन अपवर्ड है, तो ये आर इज इक्वल डब्ल्यू। ये तो बैलून फिलिंग एयर इन अ बैलून, बैलून में एयर फिल करें, व्हेन यू कैन रिलीज द एयर, तो एयर जो उसमें से स्केप आउट होगी वो होगी एक्शन। बैलून की एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, बैलून से जो एयर निकलेगी ये एक्शन है, और मूवमेंट ऑफ बैलून फॉरवर्ड ये उसका क्या है? रिएक्शन है। एक्शन एस्केपिंग ऑफ एयर, रिएक्शन बैलून इज मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, रॉकेट की एग्जांपल, अक्सर बच्चे रॉकेट में जो गैसेज आर प्रोपेलिंग, गैसेज जो उसमें एलिमिनेट हो रही हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ दैट, दिस इज एक्शन। रॉकेट इज मूविंग अपवर्ड विच इज रिएक्शन। मूविंग अ पर्सन मूविंग ऑन द अर्थ, मैं अभी फोर्स लगा रहा हूं, ये एक्शन है। मैंने आई जस्ट प्रेस द अर्थ ऑन अर्थ इज अ एक्शन। अर्थ रिएक्शन क्या दे रही है? आई जस्ट मूव फॉरवर्ड। तो एवरीडे लाइफ में नंबर ऑफ एग्जांपल, व्हेन यू कैन थ्रो अ बॉल ऑन अ वॉल, एक्शन, बॉल बाउंस बैक। आहिस्ता बॉल फेंकेंगे, रिएक्शन आहिस्ता होगा, तेज बॉल फेंकेंगे, रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन, माय डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा जरूरी है। ये लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ, ये माय डियर स्टूडेंट थर्ड लॉ है। ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन थे। मेरी कोशिश थी ये ग्रेड 9 का लेक्चर है और चैप्टर नंबर है जनाब ये 3rd। अक्सर बच्चे कहते सर आपने न्यूटन लॉ नहीं अपलोड किए, तो मैं इंशाल्लाह आज आपके लिए ये न्यूटन के तीनों लॉज, ये लॉ फर्स्ट और थर्ड लॉ, ये आपकी स्टेटमेंट के ऊपर बेस करता है। लिखें, इसमें डेफिनेशन लिखें 2 पार्ट्स की। लेकिन जो सेकंड लॉ है,
द सेकंड लॉ ये मैथमेटिकल स्टेप्स था, एग्जाम में अक्सर ये न्यूटन सेकंड लॉ आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और वो कहेगा एग्जामिनर प्रूव दैट F इज इक्वल टू ma। तो माय डियर स्टूडेंट स्क्रीनशॉट इसका ले लें और इसकी प्रैक्टिस करें। ये आपके लॉज ऑफ मोशन थे। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी कमेंट्स में बताइएगा मुझे। टेक केयर, थैंक यू।